by Ahmedabad branch of WRC of ICI in association with GCCI. We have eminent speaker, nonetheless, needs no introduction, and it has been customary to call him every time. Without you, sir, budget decoding is adhura for all of us. Now I request Chairman of Ahmedabad branch, Sunil Saghvi sir, Purushottam Khandelwal sir, Central Council member, Janik Bhai Vakil, Sandeep Bhai engineer, Sudhanshu Bhai Mehta, to escort Girish Ahuja sir to the dais. A big round of applause for him. यशस्सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामंशो पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चनान्यपि कश्चन एतद्वैता Today's faculty, text guru, my mentor, CA Dr. Girish Bhai Ahuja ji from Delhi. Central Council member, CA Purushottam Bhai Khandelwal, President of the GCCI, Sri Sandeep Bhai engineer, Chairman of the Direct Tax Task Force Committee, CA Janik Bhai Vakil, Treasurer of the GCCI, Sudhanshu Bhai Mehta, Secretary of the Ahmedabad branch, CA Sunil Shah, of the dais, Regional Council member, CA Chintan Bhai Patel, Managing Committee member, Vice Chairman of the Ahmedabad branch, CA Neerav Agrawal, past Chairman and the new elected RCM, CA Bishan Bhai Shah, Managing Committee member, CA Samir Chaudhary, newly elected Managing Committee member, CA Sahil Gala, past Chairman and the past RCM of the Ahmedabad branch, CA Durgesh Bhai Buch, past Chairman, CA Niren Bhai Nagri, CA Ganesh Bhai Nadar, CA Lalit Bhai Inani from Brahma Kumari, and all seniors and friends. I welcome all of you to this budget session by Girish Bhai Ahuja sir, organized by Direct Tax Committee ICI and hosted by Ahmedabad branch jointly with GCCI. I am thankful to Ahuja sir for accepting our invitation immediately after Delhi. Day before yesterday there was a budget session, and today he is with us in Ahmedabad. Let's have a big round of applause for the sir. One more thing I would like to announce and happy to share also, that yesterday night Ahmedabad branch received the second prize for the best branch category in ICI with the from
the President ICI and the Vice President ICI, the entire managing committee team. We were here, landed in Ahmedabad around morning in 7 a.m. and everyone is here. Thank you, the team, for this award, and not only the team, but the entire members of the Ahmedabad branch. I'm thankful to all of you. And for this second prize, not only the members category, but in the students category also at the central level. One more announcement, that as per schedule, tomorrow the lecture of the senior advocate Saurabh Soparkar has been postponed. The mail already has been shooted yesterday from the Ahmedabad branch and the CA Association, which was jointly with CA Association. That has been postponed. And the new date for that, it will be informed to you very soon. As the Honorable Finance Minister told about the new income tax bill, which is likely to be have in this week, the current week. So after that, we will have the detailed analysis for that, and it will be informed to you very soon. I welcome the Managing Committee member, the past Secretary of the Ahmedabad branch, Sri Abhinav Malavia. And once again, thank you, Ahuja sir. Thank you very much, sir. Smarak in Ahmedabad for an interactive session and the technical analysis of Finance Bill 2025. We are honored to have with us CA Dr. Girish Bhai Ahuja, a distinguished expert, along with CA Sunil Bhai Sanghvi, Chairman, CA Sunit Shah, Secretary, CA Dr. Jainik Bhai Vakil, Chairman, Direct Tax Force, and my colleague Sudhanshu Bhai Mehta, and the esteemed guests present here. We greatly appreciate the presence and the valuable insight they bring will be undoubtedly enhance today's discussion to enrich and learning experience for everyone involved. The technical analysis of Finance Bill 2025 is important because it affects various sectors of business nationwide, as well as looking to the economic pressure, the global pressure. The global pressure is very, very heavy with the changes which has occurred in the biggest global economy. And as every day we are reading, there is a new challenge for everyone. Second, there is a big challenge for the economic push, and how to bring this economic push back to normal is very important. And I think Dr. Ahuja in his speech will throw light on the effects of this budget on the push of economy, the global challenges, and the pressure which it is going to, the global challenges is going to bring on the rupee in the coming months and year. So our goal is to explore the budget in depth. We aim that everyone present here will get the insight of what has been presented in this budget. And as last time also I was present on the dais with sir, he is the right person to give the right knowledge in the depth of this budget. And I would like to thank him for coming here, and thanks the CA Institute for partnering with GCCI for the second time. And I think we'll continue this partnership in years to come. So I also encourage you to actively participate in this discussion after the speeches are over in the question answer session to understand more on the Finance Bill 2025. So thank you very much, everyone. Let's hear from sir about the budget. Thank you very much. Council member from Ahmedabad, Purushottam Khandelwal sir, to address the gathering. Chairman of the Direct Tax Committee Task Force, Jainik Bhai Vakil, Secretary of the Ahmedabad branch, Sunit Bhai, Sudhanshu Bhai,
of the Daesh, past chairman of Ahmedabad branch, past regional council member, GCCI president Durgesh Bhai Buch, elected newly regional council member, central council members, and elected newly managing committee member and respected members. There is also galaxy of the past chairman of Ahmedabad. I am not taking the naming because of the saving of the time. Yesterday, ICI has celebrated the 75th year of annual function where the Vice President of India, Jagdeep Dhankarji, was there. And they always told that there is a faith of government in the chartered accountants and you have to be continue doing a good job for the India. So he had taken 40 minutes to address the gathering, and I congratulate and compliment to Ahmedabad branch for continuous wonderful performing for getting a second best branch of ICI. So give a big round of applause and motivated the team Ahmedabad. So I will not take much of time because you are eagerly waiting to hear the Girish Ahuja sir. Thank you so much. We start with the session. Girish Ahuja sir is a BCom Honours from Shriram College of Commerce, Delhi University in the year. He has PhD from Faculty of Management Studies, Delhi University in the year 2009. His experience and employment includes practicing as a chartered accountant mainly in the field of direct taxes. He was law and the reports thereto was submitted to the Finance Minister on 18/8/2019. He was nominated by the Government of India as Independent Director to the Central Board of Directors of State Bank of India for 2 terms. He was nominated by the government with the approval of the Supreme Court to Board of the Directors of Unitech Limited. He has been an independent director of other 3 listed companies as well. He has been nominated member of the high-powered committee constituted by Government of India under the chairmanship of Justice A.P. Shah, Chairman Law Commission, to look into the issues of the applicability of the matter. Chamber of Commerce, GCCI, of course, Shri Sandeep Engineer ji, Central Council member, very hard-working man, I tell you, CA Purushottam Khandelwal ji, Chairman of the Ahmedabad branch, CA Sunil Sanghvi ji, Sunil Saha ji, Secretary of the branch, Jainik Vakil ji, Chairman of the DT Committee Task Force of GCCI and a past chairman, of course. He rather brought me to Ahmedabad, I tell you. CA Sudhanshu Mehta ji is here, was here only, Honorary Treasurer. Yeah. CA Neerav Agarwal, इनका नाम तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बुलाएंगे कहाँ अगली बार मुझे. Going to be chairman, of course, very soon. Mishan Baisal, a newly elected regional council member. Sameer Chaudhary ji, Abhinav Malviya ji, Sahil Gala, the new one who was just elected, of course, yesterday was with me. And above all, लूँगा तो मिस्टर लेकिन मिस्टर and Mrs. Durgesh Buch कह देता हूँ. हाँ, the past president of Gujarat Chamber of Commerce, of course, Harit Agarwal ji, other dignitaries भूल जाऊँगा नाम, तो इसलिए please excuse me. Normally I go by clause. Sir, how is the budget otherwise? Super, very good. Super. Anything else? कभी ऐसा देखा ही नहीं. Never thought of it. Never dreamt of it. कमाल का आदमी भेजा आपने. कमाल का है. मैं आदमी की बात कर रहा हूँ, औरत की बात नहीं कर रहा. समझ गए ना? The budget is presented by somebody, but directed by someone. You all know that. So therefore, don't feel bad when I say anything, but yes, wonderful budget. So let us start with the point, You know, there is section 10/14 giving the definition of capital asset. Few years back, there was an issue that foreign institutional investors, they invest in securities. And they've been selling and buying and selling securities regularly. Will it be called a stock in trade or a business income, or should it be taken as a capital asset taking to the capital gain? So the amendment was made 5 years back that in their case,
it will always be a capital asset, although they may be buying and selling regularly. The issue came up this time also regarding alternative investment funds, category 1 and category 2. Alternative investment fund we have in India, they are category 1 and category, they also invest in securities. And since they invest in securities, then they've been buying and selling the securities, again that issue, will it be a forming part of stock in trade, will it be a capital asset? Decided it will be a capital asset, and there will be only capital gain if they buy and sell securities by the alternative investment fund, category 1 and category 2. This is the first change. We had brought a change in unit-linked insurance policy. Unit-linked insurance policy was made taxable if you contribute more than 2,50,000 rupees in that. And simultaneously, Section 41B was also introduced, that it is capital gain when you buy. But there was a clarification required because people were taking it not as a capital asset because of proviso 4 and 5 of 1010D. So now they have abolished that and they have said clearly ULIP, whether more than 250 or less than 250, absolutely no problem, will always be treated as a capital asset, meaning thereby there will be only capital gain on that. This is the first change which is there. I don't want to take much of the time for International Financial Service Center. There was section 10.4D, 10.4F, 10.4H. There was a sunset clause that they will not be there, exemption will not be there after 31st March 25. That has been extended till 31st March 2030. Not only this section, but ATLA also, International Financial Center, exemption 100%. Now sunset was there on 31st March. Now it is gone to 2030, 5-year extension. Coming to now section 1010D. You all know that we now cannot contribute more than 2,50,000 to unit-linked insurance policy and life insurance policy, not more than 5 lakh. This was the law which was made. We were the responsible for something that I don't want to tell at this stage. Now, in International Financial Service Center, there are insurance units which are insuring the non-resident also. In international market, you could insure for any amount for life insurance. But in India, the limit is 5 lakh. So therefore, now we have said, if a policy is taken by a non-resident in International Financial Center or from the insurance units there will be no limit of 2,50,000 or no limit of 5 lakh. So this is what I'm trying to explain. It is only for international, आपके यहाँ है, तो International Financial Center में जो भी policy issue होगी life insurance की, there is no limit, the exemption will remain there under section 1010D, because in our case, exemption is not allowed if we contribute more than 250 or if we pay premium more than 250 or more than 5 lakh. This is what is the change for international financial centers, only for non-resident. Not for us, only for non-resident, issued by them in the insurance units there. The simple thing I wanted to tell you. Coming to now, charitable trusts. Over the years, there have been so many changes in charitable trust because nobody knew charitable trust. Nobody knew law of charitable trust. One charitable trust, another Hindu undivided family. Still, there is so complication. Now the point is, there are many small charitable trusts. And you know the new rule is that they have to go for renewal every 5 years. Renewal every 5 years, and there are a lot of compliances for the renewal. 5 साल के बाद पूरा एक प्रकार से new registration ही है. You take it a new registration, but we call it as renewal. So they have given a concession to the small charitable trusts whose gross receipt in the past 2 previous years, if that did not exceed 5 crore, they may go for renewal every 10 years and not every 5 years. A concession दे दिया, छोटे-छोटे charitable trust हैं, इतना 5-5 साल में उनको compliance करना पड़ेगा. So they said nothing doing. You've been given a chance. Renewal only after 10 years, provided 2 conditions. Past 2 years, your receipt should not exceed
So small. Another issue. You know, there is section, what you call, relating to 12AB, subsection 4, where powers have been given to the principal commissioner or commissioner of income tax to cancel registration of the trust if there are certain specified violations. Yes, if you are not following the object, if you are spending the money for not the purpose for which you are, or you are doing business, etc., they can cancel your registration. But there is a last line, which is that if your application is not complete or the information given is false. Now, this is a violation. They said there is a possibility that some information you might not have provided and it is incomplete. So this minor mistake. And you are saying they have a power to cancel the registration. So they have deleted the word, the application is not complete. In the sense, if there is some missing information, I'm not talking about false information, some missing information, they have not completed the application. They cannot cancel the registration. They may give you time to give the information which is incomplete. And this is very right. छोटी सी mistake के लिए आप उसका cancel कर दो और 115 TD में जाकर उसको tax लगा दो, ये तो misuse है. So they have done it. Another difficulty. You know, there is section 13(3). Person, you cannot give benefit to the person referred to in section 13(3) in the case of charitable trust. The money cannot be applied for the benefit of person referred to in 13(3). One of that is, if a person has donated, made a substantial contribution to the trust, you cannot give any benefit to them. The amount was aggregate amount of 50,000 over the year. 50,000 रुपए का अमाउंट अगर किसी ने पहले दे दिया तो उसके बाद उसके बेनिफिट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते थे. दूसरी चीज और बताऊंगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती थी. हु आर दोज पर्सन्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड 50,000 रुपीज. नॉट ओनली देयर इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो द रिलेटिव ऑफ दोज पर्सन, बट ऑल्सो द पर्सन कंसर्न इन विच दिस पर्सन हैड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. अरे क्या कर रहे हो यार, 50,000 रुपया 10 सालों में 50 सालों में कभी दे दिया, उसकी इंफॉर्मेशन हम रखें, उसके रिलेटिव की इंफॉर्मेशन भी आपको रिटर्न में देनी है और उसके कंसर्न इन विच सब्सटेंशियल उसके भी इंफॉर्मेशन दें. कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत मुश्किल काम है, बट कर दिया. अब एक पॉइंट तो ये कर दिया, ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख 50,000 रेज टू 1 लाख. एक साल 1 लाख तक है. मुझे वो नहीं है इंपॉर्टेंट कि 1 लाख है तो आप उसको बेनिफिट नहीं दे सकते, अब उनका नाम भी नहीं देना. 1 lakh तक. When you are filing a return, you have to give the persons who are in 13(3). उसमें उसका नाम देना पड़ता था 50,000 वाले का. अब 1 लाख तक देगा, कोई नाम नहीं देना. Secondly, aggregate amount is not 50 now, 10 lakh. पिछले over the year he has given the donation, and this year 1 lakh, and over the year if it is 10 lakh, you have not to give the name. But if he has given more than 1 lakh this year, or over there he has given more than 10 lakh, then only the name is given. But at the same time, no question of giving the name of the relative in the return. No question of concern in which they are interested in the return. So simplification हो गया. Possible नहीं था. It was practically impossible to find out the name of the relative of a person who are nowhere connected to you. You can call out relative of the donor, author, trustee, manager, but you can't remember the relative of the person who have donated you 50,000 and now 1 lakh. So nothing. You don't have to give. 1 lakh तक तो वो person interested ही नहीं माना जाएगा. So you can give benefit to him also. Over the year, aggregate 10 years. But you can give the relative benefit, you can give to the concern. हमें वो ज़्यादा जरूरी नहीं था. हमें मुश्किल था उसके नाम ढूंढना और रिटर्न में डालना. That matter is over. So this is also a benefit which has been given. They rightly so that we cannot give the name of these persons. तो चैरिटेबल ट्रस्ट में तो यही वो चीज आया है. आइए, एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 17(2) परक्विजिट्स का. जब आप जमाने में पढ़ा करते थे तो वहां पर लिखा होता था स्पेसिफाइड पर्सन, नॉन स्पेसिफाइड पर्सन, वैल्यू ऑफ बेनिफिट नॉन मॉनेटरी परक्विजिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू सर्टेन स्पेसिफाइड पर्सन.
वो वैल्यू करते थे और नॉन स्पेसिफाइड के लिए नहीं करते थे। स्पेसिफाइड होता था डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। If the company has given benefit to the director of the company or the specified person, so all kind of non-monetary purchases were taxable. Free motor car, rent free तो वैसे ही taxable है। दूसरा होता था a person who has a substantial interest in the company, 20% voting power. तीसरा होता था whose income under the head salary, exclusive of monetary purpose, non-monetary purpose, does not exceed 50,000. याद आया? निकालना पड़ते थे कि कैसे 50,000 निकालना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 50,000। हमने भी 50 पढ़ा था, ये यंग लड़कों ने भी 50 पढ़ा था। कितने साल हो गए कि उनको कार फ्री दे दें 50 से नीचे वालों को। 50 साल का तो ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा, उसके ऊपर देंगे तो टैक्स। अरे क्या कर रहे हो, कुछ तो देखो। तो अब उन्होंने कह दिया वी विल प्रिस्क्राइब द अमाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बता देंगे 50 नहीं होगा, हर साल बता देंगे 50 है, 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, वो नॉन मॉनेटरी पर्पस, उनको टैक्स नहीं लगेगा, बाकी को लगता ही है। ऐसे होता था व्हेन यू गो फॉर फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट, द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन एंड इज टैक्स फ्री, एंड सेकेंड वॉज ट्रेवल, सेकेंड वॉज स्टे इन दैट कंट्री of the patient as well as one attendant, that was also tax free. तीसरा था फॉरेन ट्रेवल, अगर एम्प्लॉयर ने उसका फॉरेन ट्रेवल मीट कर दिया तो भी टैक्स फ्री होगा, प्रोवाइडेड ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2 लाख। ये 2 लाख रुपए के लिए वो फॉरेन ट्रीटमेंट जिसकी सैलरी होगी, सिर्फ टोटल होगी, वो फॉरेन ट्रेवल करके ट्रीटमेंट कराएगा, वो 2 लाख भी हटा दिया। दे से वी विल प्रिस्क्राइब दैट अमाउंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर सर? अब आया सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। आपको पता है दैट सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस द एनुअल वैल्यू इज निल, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आपको 2 के नील है, यू कैन हैव एनुअल वैल्यू निल फॉर 2। लेकिन वहां लिखा था एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड इज निल, एंड इफ इट कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड for the reasons employed elsewhere or carrying on your business and profession elsewhere, तो ही वो माफ होगी, अदरवाइज ये नहीं होगी। क्या अगर खाली रखी है और वो आप ऑक्यूपाइड नहीं कर सके, क्या कारण है? कि यू आर एम्प्लॉयड आउटसाइड सिटी ऑफ अहमदाबाद, यू आर कैरिंग ऑन ए बिजनेस देयर, और मुझे खाली रखनी पड़ रही है, इसलिए उसको नील कहते थे। सिर्फ 2 ही कारण ये थे, एम्प्लॉयड एल्सवेयर, कैरिंग ऑन में। उन्हें कहा सॉरी, एनी रीजन यू कुड नॉट ऑक्यूपाई। ऐसा भी तो हो सकता है, यू आर ए प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टे इन द कॉलेज प्रीमाइसेस ओनली, और आपका घर अहमदाबाद में है, यू आर नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, यू आर नॉट एम्प्लॉयड एल्सवेयर, यू आर एम्प्लॉयड इन अहमदाबाद ओनली, एंड यू आर एम्प्लॉयड एज ए प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, एंड द ड्यूटी इज दैट यू हैव टू स्टे इन द कॉलेज प्रीमाइसेस, और वो खाली रखा हुआ है। तो कहते थे ये ना, ये तो डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा, बिकॉज यू शुड हैव ऑक्यूपाइड दैट हाउस। आप कहते हैं फॉर एनी रीजन यू कुड नॉट ऑक्यूपाई, तो माफ है, 2 घर माफ है, 2 घर माफ है फॉर एनी रीजन। पर रीजन मेंशन अगर करना तो स्क्रूटनी के टाइम पे करना होगा कि सर ये कारण है, मेरी एम्प्लॉयमेंट ऐसी है, जैसे ये पुलिस वाले घर है उनका अहमदाबाद, लेकिन उनको थाने में ही रहना है, ड्यूटी उनकी ये है, तो क्या करें? They are supposed to live there, they are supposed to look after there, और कोई PS है किस पर इसका, कोई मिनिस्टर का, उसको वहीं रहना है, कहाँ पर? मिनिस्टर के पास, लेकिन उसका घर है, तो कहते वो एम्प्लॉई अगर है तो कहता था मैं उसका घर का लिए तो खाली रखा हुआ है। नो, इट इज़ नो इशू, एब्सोल्युटली नो इशू, यू कैन हैव 2 houses ready, and reason you have to just say that my duty demands that I have to live in that premises. वो अलग बात है, उसका अहमदाबाद नहीं था, कुछ उसका बड़ौदा में था, तो माफ था, क्योंकि जी एम्प्लॉयड हियर है, लेकिन वो अहमदाबाद में एम्प्लॉयड है, अहमदाबाद में ही घर है, लेकिन क्योंकि उसकी ड्यूटी ऑफ नेचर ऐसी है कि उसको वहाँ रहना पड़ेगा, तो इन दैट केस यू जस्ट टेल माय ड्यूटी, तो हमारे लिए माफ, तो थोड़ा ठीक कर दिया, क्योंकि इन मिनिस्टरों के पास ही ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लिए कराना ही था, कर दिया उनके लिए 23(2). चलिए सर, बिजनेस के चैप्टर में सिर्फ एक चीज आई है बस, एक नया सेक्शन डाला 44 BBD। ये हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, वी वांट दैट वी शुड हैव अल्ट्रा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, वी वांट दैट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वी शुड कैन
get technical know-how from outside India for manufacturing of electronic goods. अब non-resident है, he is providing you manufacturing facility here, or he is providing you know-how here for establishing the electronic goods, manufacturing of electronic goods as may be specified. उसको बनाने के लिए अब नॉन रेजिडेंट को तो टैक्स देना पड़ेगा यहाँ पर, एंड टैक्स रेट इज 35% इफ इट इज कंपनी एंड अदरवाइज ऑल्सो. उनके लिए एक प्रेजेंटिव इनकम निकालती है. लुक हियर, if you are providing manufacturing facility for manufacturing for services for manufacturing facility, or you are providing know-how to a resident in India for what? For development of electronic facility or manufacturing of goods of the electronic, तो ये कीजिए. उनको बोला गया नॉन रेजिडेंट को, you presume your income, presumptive tax to be 25% of the gross receipt. Presume your income to be 25% of the gross receipt. 1 करोड़ दिया तो 25% उसकी होगी. ये इनकम है, टैक्स तो उसके ऊपर लगेगा ना, तो वो टैक्स अप्रॉक्सीमेटली 10% से कम होगा. So that's why they have brought the law that we are giving you the facility of presumptive tax. हमारे यहाँ पहले भी presumptive tax है नॉन रेजिडेंट के लिए 10% वाले, तो एक और डाल दिया 44 BBD only to a non-resident who has provided services for manufacturing facility in India to a resident or provided know-how to a resident for manufacturing of electric goods which may be specified from time to time. इसलिए उनको प्रेजेंटिव इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा. ये डाला है सर. ये 44 DDB हो गया. BBD सॉरी, कोई चेंज नहीं है 45 में, वो 45 1B मैंने बता दिया. नेक्स्ट चेंज जो आया है, आप सीधा जाइए, खतरनाक आया 72A एंड 72AA. कईयों को समझ में आया, कईयों के नहीं आया. अब नॉर्मली देख ले, व्हेन देयर यूज्ड टू बी अमलगमेशन और डीमर्जर, क्या पर्पस होता था? इफ देयर इज अ लॉस मेकिंग कंपनी merging with the profit making company, the loss could be carried forward for a fresh period of 8 years. 8 साल तक नया चांस मिलता था. लॉस कुड बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ, अनऑब्जर्व की मैं बात नहीं कर रहा. अनऑब्जर्व तो नंबर ऑफ ईयर्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कैरी फॉरवर्ड लॉस इन केस ऑफ अमलगमेशन, इन केस ऑफ ए डीमर्जर, इन द केस ऑफ ए सक्सेसर कंपनी वाज अलाउड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 8 years. इसी तरह होता था सेक्शन 72A(6), conversion of a sole proprietary firm into a company, conversion of a partnership firm into a company was not regarded as a transfer. और साथ में ये लिखा था losses will be allowed to be carried forward for a fresh period of 8 years. This is called reorganization. उसको कहते थे merger amalgamation, ये reorganization. Similarly, you are converting a limited company into LLP. कन्वर्ट कीजिए, वो तो वही रॉ है 4713B वाला कि कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉसेस जो थे पहले यू कुड कैरी फॉरवर्ड फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 8 years. ये तीनों में खत्म. नाउ लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम ओरिजिनल प्रेडिसेसर हु हैज इंकर्ड द लॉस. मतलब मैक्सिमम 8 साल है, 5 साल निकल चुके हैं प्रेडिसेसर के तो 3 साल होंगे, 6 निकल गए तो 2 होंगे, 7 निकल गए तो 1 ही होगा. बैलेंस नंबर ऑफ बैलेंस नंबर. काफ़ी नुकसान हुआ. हमेशा लॉसेस कंपनी के लिए कैरी फॉरवर्ड इसलिए किया जाता था कि टैक्स का सेविंग होता था, बिकॉज यू कुड कैरी फॉरवर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 8 years. छोटी सी रिस्ट्रिक्शन थी, यू शुड कंटिन्यू टू कैरी ऑन दैट बिजनेस. और NCLT के जितने भी लिए जाते थे लॉसेस होते थे, फिर इमीडिएटली मर्जर कर देते थे. यू यूज टू टेक इट एंड देन मर्ज इट विद द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. ये जो टैक्स प्लानिंग थी मर्जर की या कन्वर्जन ऑफ इनटू रीऑर्गेनाइजेशन की, प्रैक्टिकली लॉसेस के लिए होती थी, वो खत्म हो गई, क्योंकि अब बैलेंस नंबर ऑफ ईयर मिलेगा. ठीक है, जितना मिलेगा ये लॉ है, यू कांट हेल्प इट. ये है 72A. सिमिलरली 72AA बैंकिंग कंपनी का होता था. लॉस मेकिंग बैंकिंग है, उसको मर्ज कर दिया प्रॉफिट मेकिंग बैंकिंग से, वही कैरी फॉरवर्ड 8 years. Now carry forward only for balance number of 8 years. Each year carry forward for 8 years. This is the law. Each year loss carry forward for 8 years. अब बैलेंस नंबर होगा वो नहीं होगा. ये थोड़ा है.
मुझे बोला गया कितने नंबर देंगे कल वो फॉर्म में परसों, किसी ने कहा 10 दूंगा, एक कहता 11 दूंगा, मैंने कहा 9 दूंगा, कहता आप 9 क्यों दे रहे हैं? मैं देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। 10 के 10 दे दिए फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी? और सेकेंडली दिस इज द रीज़न जहाँ पर कई कंपनियों को नुकसान हुआ, बिकॉज यू कैन कैरी फॉरवर्ड द लॉस ओनली फॉर ए पीरियड ऑफ बैलेंस नंबर पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। ये है जी 72A 72। अब आ रहे हैं जिन्होंने करवाया उन्हीं का नुकसान होने वाला है। हमारे जैनिक भाई कह रहे हैं गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था, किस चीज़ के लिए? ATCCA नेशनल सेविंग्स की। You know, from 29th of August 2024, they have discontinued giving interest to the national savings scheme. इंटरेस्ट नहीं देंगे। अबे क्यों नहीं दोगे जब आपने कहा था कि इंटरेस्ट मिलेगा? आपने ये कहा था अगर खुद निकालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बच्चों को दोगे तो कुछ नहीं देना मरने के बाद। अब ले लो, अब नहीं मिलेगा आपको, अब आपके फादर ही निकाल लेंगे। वो कहता मेरा पैसा ये क्यों यूज करें, और जब इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है तो यू आर अलाउड टू विड्रॉ नाउ अंडर ATCCA। कल जाके निकाल लीजिए, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कल जाके और निकालिए। सीनियर को बोल रहा हूं, ये बच्चों के भरोसे मत रहना, पैसा मेरा है, मैं यूज करूंगा। और वैसे भी गुजराती बहुत घूमने जाते हैं, जाओ ना वहां लेकर घूमो या फिर इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, बट यू कैन विड्रॉ। सबका 15-15 लाख 20-20 लाख हुआ है। कभी आप सोचे, कभी देखा आपने NSS का पैसा? 15 लाख 20 लाख मेरा हुआ है। मैंने बेटियों को कह दिया जा अब मेरा है पैसा, उनका होगा आपका नहीं होगा, ये बता दो। अब वो विड्रॉ करें। मैं तो हमेशा कहता हूँ जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है सब कुछ बच्चों को मत दे देना, अपने लिए रख लेना और अपनी बीवी के लिए रख लेना। नहीं तो कहाँ बुक करा लेना? अडल्ट होम में अपना कमरा बुक करा लेना। क्या जिंदगी आ गई सर। हम सैंडविच हो गए, माँ बाप से भी डरते थे, बच्चों से भी डरते हैं। बता दो कौन नहीं डरता अपने बच्चे से? कोई खड़ा होकर बता तो दे कि मैं अपने बच्चों से नहीं डरता। माँ बाप से तो हम डरते रहे, जो उन्होंने कहा मानते रहे। मानते रहे कि नहीं मानते रहे? गलत बोला तो भी ठीक है, थैंक यू। और आजकल के बच्चे सुनते हैं, ये खड़ा होकर मैं नहीं डरता। मैं कहा तेरी शादी हो गई? कहता अभी नहीं हुई है। मैं फिर कहा कौन बात कर रहा है? मैं तेरी शादी हो गई? दूसरा कहा मैं भी नहीं डरता। कहता बच्चा 4 साल का है। मैं कहा इंतजार कर। वो 4 साल वाला भी जमीन पे लेट जाता है, मुझे ये चाहिए, और आप दिलवाते हैं उसको। दिलवाते हैं कि नहीं दिलवाते? सर ये हाल हो गया हमका। तो बच्चों के लिए करते हैं हम, बच्चे हमने पैदा किए, हम बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले अपने लिए रखेंगे, अपने लिए और अपनी स्पाउस के लिए। ये जिंदगी में सोच के चलना। मानता हूं कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं ये नहीं कहूंगा, अगर आपके पास पैसा है तो बेटा भी पूछेगा, बहू भी पूछेगी। जिस दिन पैसा ना हुआ पता नहीं पूछेगी कि नहीं पूछेगी, ये मुझे नहीं पता है। तो सर ये NSS का पैसा अब आपको नहीं मिलेगा, अब आपके फादर को ही मिलेगा, वो विड्रॉ कर ले। तो अगर ना लेना चाहे तो आपको मिल सकता है, बट नाउ आई कैन विड्रॉ। एंड व्हाई शुड आई नॉट विड्रॉ? बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग इंटरेस्ट। आई शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आज की बात मत करना, फिर गिर गई, पता नहीं क्यों हुआ है। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। टैरिफ लगता है वहां पर कनाडा पे, छींक छींक वहां आती है, पढ़ते हम यहाँ पर बैठ कर। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आई। इतने बड़ा बजट और क्या कर दिया। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में कोई फंडामेंटल है ही नहीं, ये तो सबको पता। कमिंग बैक, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि NSS, yes, your representation, even somebody else also had represented that since we are not getting any interest after 29th of August 2024, we should be allowed to withdraw that and there should not be any tax liability on that. And they have put it a proviso under section ATCCA saying that you withdraw the money, we are not going to tax you. इसलिए वो 194EE भी खत्म हो गया, क्योंकि जब भी विड्रॉ करते थे तो TDS कटता था 20%। अब कटना क्या है, अब तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया। सो दिस इज ATCCA which I wanted to tell you. Another small change in ATCCD.
गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है, वात्सल्य नेशनल पेंशन स्कीम, वात्सल्य नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, वात्सल्य 20, अपने माइनर चिल्ड्रन के लिए आप पैसा जमा करा सकते हैं अंडर एनपीएस। न्यू स्कीम निकाली, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर माइनर चिल्ड्रन। कितना? वही जो 80 CCD 1B में लिखा है, अप टू 50,000 रुपीज यू कैन डिपॉजिट इन देयर नेम so long they are minor. It is otherwise you are not withdrawing, and once they become major, the account will be transferred to them. Account will be transferred to them. But unfortunately, if the minor dies, the money will be given to you. अब उसमें एक कंडीशन डाल दी, एक चीज डाल दी, you can withdraw from that money 25% of your contribution for some emergency, maybe education of the child, maybe medical treatment of the child, of any reason. You can withdraw up to 25% under CCD2. There will be no tax on that. So आजकल डिडक्शन तो कोई लेता ही नहीं है ना। नई स्कीम में कौन सा डिडक्शन है? नई स्कीम में कौन से? न्यू रिजीम में तो डिडक्शन है ही नहीं। लेकिन फिर भी पैसा जमा कराने के लिए मैं भी एक PPF जमा कराता हूँ 1.5 लाख, डिडक्शन थोड़ी मिलती है, लेकिन एग्जेम्पशन तो मिलती है ना। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है फुल्ली एग्जेम्प्ट तो है। एवरीवन इज डिपॉजिटिंग अंडर PPF एंड वन शुड गो फॉर PPF। एग्जेम्प्ट इनकम, नॉन अटैचेबल इनकम पड़ा रहेगा, पता नहीं लगता, और जब मिलता है तो काफ़ी अमाउंट हो जाता है। मैंने पूछा मेरा कितना हो गया, कहता 85 लाख हो गया। मैं कहा आराम से कर दो रिन्यू। तो वही पॉइंट है कि पैसा पड़ा हुआ है और बच्चों के नाम पे भी कर सकते थे या अपने नाम भी करना है। PPF अकाउंट होना जरूरी चाहिए। नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिडक्शन, नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिडक्शन, वी डोंट वांट। एंड ये NPS भी क्या है? नेशनल पेंशन स्कीम इज ओनली अमाउंट यू आर गेटिंग रेगुलरली एज ए पेंशन। सो नो क्वेश्चन ऑफ डिडक्शन नाउ, बट स्टिल इट इज ए बेटर स्कीम टू गेट द सर्टन बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो 80 CCD हो गया। नेक्स्ट सर 80 IAC स्टार्टअप का वो सनसेट था। स्टार्टअप वो जो 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप है उनको डिडक्शन मिलता है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, फॉर आउट ऑफ द कंसेक्टिव पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 100% डिडक्शन मिलता है स्टार्टअप को 80 IAC में। लेकिन सनसेट था मैन्युफैक्चर दैट दे शुड स्टार्ट बिजनेस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 एंड बिफोर 1 अप्रैल 2025। खत्म होने जा रहा था, एक्सटेंडेड टू 2030। वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया स्टार्टअप वाला। और इसी तरह वो ATLA गिफ्ट ये IFC का पीरियड 31 मार्च 25 था, 100% डिडक्शन आउट ऑफ 15 ईयर्स, दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू बाय अनदर 5 ईयर। तो वो भी एक्सटेंड कर दिया ATLA। अब आया जिसने कुछ सोचा नहीं था, किसी ने सोचा था 12 लाख रुपए माफ हो जाएगा? डिड यू एवर थिंक ऑफ दैट? अरे रिकमेंडेशन भी थी, 7 है, हमने कहा 10 मांगते हैं, 8-9 कर देंगे, 12 कर दिया। ये क्या हुआ है सर? मुझे समझ में नहीं आया, ये सडनली क्या हुआ है? हमारे केजरीवाल के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो बोल रहा था मिडिल क्लास के लिए क्या किया है, अगले दिन रिजल्ट आ गया मिडिल क्लास के लिए ये किया। देखिए, उसको नहीं पता था, सीक्रेट है वो। लेकिन देखिए, ये दिल्ली इलेक्शन नहीं है, दिल्ली इलेक्शन के लिए नेशनल नहीं। जब नेशनल इलेक्शन हुए तब तो कुछ नहीं किया, करना होता तो तब करते ना। नेशनल इलेक्शन के टाइम में डिड दे गिव एनी बेनिफिट टू यू? नॉट एट ऑल। एंड द बेनिफिट इज फ्रॉम जंप फ्रॉम 7 लाख टू, कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। अरे नया नया एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 6 लाख का पैकेज, 9 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 11 लाख, इससे ऊपर कहाँ मिलता है सर? सारे माफ। Sir, just a second. So one car needs to be removed from this place, from the parking. It's creating chaos. 8758 white Nexon. Please immediately take. Okay. 8758। Thank you. सो मेरा पॉइंट ये है कि आप एक अंदाजा लगाइए कि एक सैलरी वाला 1275 माफ है, 75 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो है। सर 1 लाख रुपये महीना तनख्वाह बहुत कम को मिलती है, और शुरू में तो 6 लाख का पैकेज, 8 लाख का पैकेज, 9 लाख का पैकेज, सारा माफ, कंप्लीट एग्जेम्प्ट, कुछ टैक्स ही नहीं देना है। कम से कम 5,000 रुपये महीना तो सबको फायदा हुआ। अगर 12 लाख तक है तो 60,000 सबको। मुझे 1,43,000 रुपये का फायदा है, 1,43,000। और जो 24 लाख के ऊपर का जिसकी है, मिनिमम 110 प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस 4%।
मिनिमम 110 अगर 24 से ऊपर है, और मेरे हिसाब से सब 24 से ऊपर होंगे, दिखाए नहीं तो मुझे नहीं पता। 24 से ऊपर वालों को 1,10,000 सरचार्ज है, वो प्लस 4%, मिनिमम 1,14,000 का फायदा हुआ। मेरे को 1,43,000 का फायदा हुआ। सरचार्ज ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, उसका 4% भी ज़्यादा होगा। सर 12,000 पर मंथ, 10,000 तो सबको हुआ है। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट सर, 10,000 एक्स्ट्रा मनी यू आर गेटिंग। और आपने नोटिस नहीं किया 44 AD में अगर आपका 1.5 करोड़ टर्नओवर है तो भी 12 लाख ही बनता है, 8% में। कैश वाला धंधा, कैश वाले धंधे में कितना? 12 लाख। अगर आप बिजनेस करते हैं चेक वाला तो 2 करोड़ तक 12 लाख, 6% ही तो है। अरे 2 करोड़ टर्नओवर कितना? 2 करोड़ का 6% 12 ही तो बनता है, 1.5 करोड़ का 8% 12 ही तो बनता है। कंप्लीट एग्जेम्प्ट टर्नओवर 1.5 करोड़, नो टैक्स, नो अकाउंट्स, नथिंग। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी अगर 20 लाख के पहले शुरू में काम करता है तो 10 लाख बनाएगा तो पूरा माप है। 60% दिखा दे तो भी तो माप है 12 लाख। हम 24 इसलिए नहीं बोल रहा कि पहले सर्विस टैक्स GST की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, इसलिए 24 नहीं बोला। 24 बोल सकता था, फिर GST रजिस्ट्रेशन है। विदाउट GST रजिस्ट्रेशन ऑल्सो 20 लाख अगर टर्नओवर है और आप 60%, विष्णु जी मेरी तरफ देख रहे हैं क्योंकि GST मुझे ज़्यादा नहीं आता, उनको ही आता है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूं ना। 20 लाख का 60% दिखा दूंगा, वहां पे 12 लाख। सर ट्यूशन क्लासेस, ये क्लासेस और ब्यूटी पार्लर, इतने तो हमारे ब्यूटी नहीं है जितने ब्यूटी पार्लर की इनकम दिखाई जाती। समझ में आ गया ना? मैंने कहा सरकार तैयार है कि 12 लाख तक जा सकते हो, कोई अकाउंट्स नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन याद रखना ब्यूटी पार्लर होगा तो 20 लाख से ऊपर कवर हो जाओगे GST में। 40 लाख तक तो गोलगप्पे भी बेच सकते हैं हम। इनकम 60% दिखा दो, इनकम तो 60% दिखा सकता हूं, वाइट 8%, 60%, नोट रजिस्ट्रेशन GST। वो फंस गया ना एक आदमी UPI में 40 लाख का जब उसका जवाब, वो कहता तेरा 40 लाख तो यही हो गया, GST तो दे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, इतना रिलीफ कभी सोचा नहीं था। नो वन हैज, अरे कभी सोच ही नहीं सकता था इतना बेनिफिट मिल जाएगा। कुड यू थिंक ऑफ दैट? कभी किसी ने सोचा ऐसे 12 लाख मिल जाए? नहीं, ये मोदी जी नहीं सोचा होगा, हमने तो सोचा नहीं था सर। कमाल कर दिया, ऐसा तो मैं कभी सोच के चला ही नहीं था। लेकिन एक चीज जो पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्लियर कर दी है, स्पेशल रेट वाले में ये डिडक्शन नहीं मिलना। वो तो पहले भी था लेकिन आप मान नहीं रहे थे, अब प्रोवाइजो डाल दिए। अब प्रोवाइजो डाल के कह दिया ये स्पेशल रेट वालों का नहीं है, नॉन स्पेशल जो नॉर्मल रेट है 115 BAC IA, उसको हम मना नहीं कर रहे। तो अब ओल्ड स्कीम में जाएगा कौन? मैं बताओ कौन ओल्ड रिजीम में जाएगा? अरे 4.5 का बेनिफिट भी ले लो तो 5 + 4.5 9.5 होता है। अरे 4 का 2 वो ले लो, 1.5 लाख वहां ले लो, और 9 लाख वाले ही 4.5 जमा कराते हैं। मैंने तो समझ नहीं आ रही, समझ में आ रहा है? टोटल 75,000 रुपये कमाते हैं और 4.5 की सेविंग कर लेते हैं। ये हमारी कंट्री में ही हो सकता है, कैसे खर्चा बचाते हो, कहाँ से होगा। लेकिन अब तो सेविंग बैंक की बात नहीं है ना, अब नई रजीम में है 12 लाख रुपया। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट सर, नो टैक्स एट ऑल, नो टैक्स एट ऑल। ये कभी सोचा नहीं था। अरे चाहिए एम्प्लॉयर को देखो कितना फायदा हुआ है। 1 लाख से नीचे जितने एम्प्लॉई हैं TDS काटना ही नहीं है काफी कंप्लायंस की प्रॉब्लम खत्म हुई है। 1 लाख से नीचे जो और काफी परसेंट तो 1 लाख के नीचे ही होते हैं। अरे बहुत लोग 1 लाख से नीचे होते हैं, 1 लाख से ऊपर तो बहुत कम होते हैं। 1 लाख तक कोई TDS ही नहीं काटना। 192 की भी वैल्यू अब खत्म हो गई उसके लिए। मतलब समझे नहीं हो आप, कुछ भी डाल लो, डालने TDS नहीं काटना ना उसके लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, पर याद रखना 44 AD वगैरह में होंगे तो वो नहीं लगता TDS का के लगता है कि नहीं लगता। 44 AD में क्या TDS के सेक्शन लगते हैं? लगते कि नहीं लगते? लगते कि नहीं लगते?
लेकिन मेरा पॉइंट ये है, वहाँ पर TDS तभी होगा जब 1 लाख से ऊपर होगा। जब 1 लाख से नीचे है और बुक्स आपने बनाना नहीं है तो 48.3 तो लगता नहीं है वहाँ, 48.3 नहीं लगता है वहाँ पर। समझ में आ गया ना मेरा मतलब? सो नाउ व्हाट यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि सरकार चाहती है कि रिटर्न तो भरनी पड़ेगी, नो डाउट, एवरीबडी नोज रिटर्न यू विल हैव टू फाइल, बट अप टू 12 लाख देयर इज एब्सोल्युटली नो टैक्स। इतना अमाउंट बचना कभी सोच नहीं सकते थे। नोबडी कुड एवर थिंक ऑफ दैट। कमाल किया है और इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोविजन दिया, इतना जंप मारा है कि कोई कह नहीं सकता, और जिससे प्रैक्टिकली ओल्ड रिजीम तो खत्म ही हो गई, प्रैक्टिकली खत्म है, जब तक कि HRA का रगड़ा ना हो। और HRA का बड़े वाला हुआ तो अलग है, छोटे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ये इनकम टैक्स बिल जो आपको सुन रहे आ रहा है, ये मैंने किया। अगर आप सुनिए, जुलाई में मैडम ने कहा था डायरेक्ट टैक्स बिल आएगा, कहा था ना डायरेक्ट टैक्स बिल। मैं क्या, मैडम के पास तो मैं जाता नहीं है, नीचे गया, मैंने ये मतलब क्या है आप डायरेक्ट टैक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स? ये डायरेक्ट टैक्स कोड तो 2009 में था। नाउ वी हैव ओनली वन टैक्स, एंड व्हाट इज दैट टैक्स? इनकम टैक्स। तो व्हाई नॉट इनकम टैक्स बिल? और हमने बना के इनकम टैक्स बिल दिया है, ना कि डायरेक्ट टैक्स बिल दिया है। वही डीटीसी के ऊपर पड़े जाते हैं आप, और वो भी विवाद से विश्वास स्कीम, उसका नाम भी क्या रखा हुआ है? डायरेक्ट टैक्स से विवाद से विश्वास। क्या वेल्थ टैक्स के लिए है वो? तो फिर किस लिए वाई आर यू ये द मीनिंग? टेक्निकल मीनिंग नहीं समझ रहे। व्हाई डू से डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास से इनकम टैक्स विवाद से विश्वास की? एम आई राइट और रॉन्ग? अब मैडम ने इस बार इनकम टैक्स बिल आ रहा है कहा है, नोटिस किया? इस बार बोला क्या आ रहा है? इनकम टैक्स बिल। आप समझ नहीं रहे इसका क्या मतलब है। अगर मैडम बोल देती डायरेक्ट टैक्स आ रहा है तो शायद इनहेरिटेंस टैक्स भी आ सकता था। अब मैडम ने क्या बोला है? इनकम टैक्स। सर, नो क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स। यहां से सोचिए, कैच करिए, द वर्ड डायरेक्ट टैक्स कुड इंक्लूड एनी अदर टैक्स ऑल्सो इन द बिल। द वर्ड इनकम टैक्स कैन नॉट इंक्लूड एनीथिंग। तो इसलिए एक और रिलैक्स्ड है, इनहेरिटेंस टैक्स का अभी कोई चांस नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स। एंड सेकेंडली जो बिल आएगा, सर आप सबको पता है हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? मैंने कई बार पूछा आपके यहाँ से, कितने सेक्शन है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में? कितने होंगे? भूल गए? किसी ने देखा हो तो बताओ, और समझ में आए तो पढ़े। कितने फिर भी अप्रोक्सीमेटली? वो तो मैंने ही बताया इसलिए बोल रहे हैं, अदरवाइज तो 298 है। If you look up, it is 298. But I told you, these are 550. Why? Because all capital sections, 44A, 44AA, 44AB, 44AD, 44AE, 44F, ये सब क्या है? 150, 111A, 112, 112A, 115A, 115AB, 115AC, 115AD, 115AE, 115AF, AG, H, ये सारे क्या हैं? 115B, B के बाद BA, BAA, BSB, BAC, BAD, BAE, ये सारे सेक्शन ही तो हैं। ऑल दीज आर सेक्शन। इसलिए अब 274 सेक्शन बना के दिए, नो प्रोवाइजो देयर। हमारे तो 1023C में 24 प्रोवाइजो है, 24 प्रोवाइजो, कोई प्रोवाइजो नहीं डाला। क्योंकि जब इनकम टैक्स आया था तब था नहीं, डलवाया किसने? हमने। तो आने दो, हम प्रोवाइजो डलवा देंगे आहिस्ता आहिस्ता। समझ में आ गया क्या मतलब है? अब जब लूप होल निकलेगा तो प्रोवाइजो डलेगा। सो माय पॉइंट इज, प्रैक्टिस के लिए फिर ब्राइट फ्यूचर आ गया इनकम टैक्स के लिए। ब्राइट है, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो पढ़ेगा वो ऊपर आएगा। जीएसटी किसने सक्सेसफुल किया इस कंट्री में? किसने सक्सेसफुल किया ये कंट्री ने? चार्टर्ड अकाउंटेंट। पढ़ा ना तो हुआ ना। अब इनकम टैक्स भी दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। वैसे तो अभी तक अभी भी सपने आते हैं, ओ मैं फेल हो गया, और भागता रहो, मैंने बड़ी देर से पहले पास हो गया। आते कि नहीं आते बताइए? आते कि नहीं आते? कभी कभी आ जाता है, यार मैं फेल हो गया। ये होता है, लेकिन सीए हार्डवर्क करना जानता है, वो पढ़ लेगा और वो अंडरस्टैंड कर लेगा। और नई चीजें आने की वजह से अब वैल्यू उसकी है जो
जो पढ़ेगा। जो नया नया मुसलमान बनता है 5 बार नमाज पढ़ता है, जो हाजी हो जाता है वो पढ़ना ही बंद कर देता है। हम सब हाजी हो चुके हैं, हम हाजी हो चुके हैं, अब हाजी से बदलना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा और हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोड़िए मेरी कितनी दुकान चलेगी, ये तो देखिए बार बार बोला। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अच्छा है नया लॉ आए, अभी लागू नहीं होगा। नो नो नो, अभी तो हो गया असेसमेंट ईयर 26 27 की अमेंडमेंट सब आ गई। जेपीसी को जा सकता है, आपसे सजेशन मांग सकते हैं, मिनिमम तो 28 29 से होगा। अभी तो हो ही नहीं सकता, 26 27 को तो आ गई ना, 26 27 की सब चीजें आ गई, तो उसका क्या करना है आपने। 28 29 आ सकता है, अभी बिल आएगा, डिस्कस होगा, जेपीसी में जा सकता है, उसके बाद डिसीजन होगा ना। तो 28 29 हो सकता है उसका नाम 28 29 बदल जाए। एक ही चीज हो, असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल, पर वर्ड क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। हमने तो यही कहा है कि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में कंफ्यूजन रहता है, जैसे जीएसटी में फाइनेंशियल ईयर है, टैक्स ऑफ दिस फाइनेंशियल विल बी गिवन एट दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो कर देंगे। देखो क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन, वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश नहीं है, इंडियन इंग्लिश है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप देखिए आएगा, टाइम लगेगा, डिस्कस होगा। इन द मीन टाइम ये सोच रहे हैं कि हम वो आ जाएगा तो उसका इमीडिएटली रख लेंगे, जितना मर्जी रख लीजिए, उसमें तो कई चीज़ें सजेशंस आएंगी, लेकिन आएगा, रखना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा, वो पढ़ेंगे तो ही तो पता लगेगा क्या आ रहा है, बट आएगा, सीरीज ऑफ डिस्कशंस होगा। अरे उन्होंने भी क्या किया, हमारे 274 सेक्शन लेकर ना 25 सेक्शंस ग्रुप को दे दिए, ये 25 को 25 इसको 25 इसको, वो डिस्कस दिख रहे हैं। और मैंने कहा सर पहला सेक्शन दूसरे सेक्शन से कई बार कनेक्ट होता है, आप क्या कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। ये 25 वाली दे दिया, कभी आपने देखा नहीं है कैपिटल गेन का सेक्शन 45 या टैक्स 112 में लग रहा है, तो कैसे लिंक करेंगे वो, दे डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स, यू नो। देखिए क्या होता है, लेट्स सी, बट क्योंकि हमने 18 में दिया, 19 में दिया था, 6 साल हो गए, कई अमेंडमेंट आ गई। कोई सोचता था विदाउट इंडेक्सेशन वाला काम हो जाएगा, तो इसलिए दे विल बी डूइंग इट एंड इट विल बी प्रेजेंटेड, नो डाउट। वो तो मोदी जी ने बोला है आना है तो आना ही है, तो आएगा चाहे कुछ हो जाए। चलिए सर आगे, ये आपका 115 BAC भी हो गया, न्यू रेट तो आपको पता लगी गए, 4 लाख नील, नेक्स्ट 4 लाख 5%, नेक्स्ट 4 लाख 10%, नेक्स्ट 4 लाख 15%, नेक्स्ट 4 लाख 20%, नेक्स्ट 4 लाख, अब 25 का स्लैब भी आ गया। सर 15 के ऊपर 30 था नई रिजीम में, 15 के ऊपर 30 था, अब क्या है 24 के ऊपर 30 है। वो 9 लाख वाले स्लैब में एक तो वो 15 का वाला से जो 16 और 20 का किया, वो भी 4%, वो 20% कर दिया। पहले तो 15 से 30 था, 12 से 15 था 20, 12 से 15 20 था, अब क्या हो गया 20 तक 20 हो गया, और फिर 20 से 24 तक 25% स्लैब भी आ गया। सो इट्स वेरी रीजनेबल कि 24 लाख के ऊपर आपको 30 लग रहा है, उससे पहले नहीं लग रहा, और 2 लाख रुपये महीना कहाँ सोचा था कभी। तो इट इज़ रियली गुड दैट 115 BAC वो आया है 1A। चलिए आगे चलते हैं। सर हमारे यहाँ जब स्टूडेंट है ना, यहाँ पर जो यंग लड़के, उन्हें टनेज टैक्स इनकम पढ़ा था, टनेज टैक्स का पढ़ा होगा। पता कितने सेक्शन थे उसमें, टनेज टैक्स में 27 सेक्शन थे। शुरू कहाँ से होता, 115V, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VZ आ गया, खत्म नहीं हुआ, VZA, 115 VZB, VZC, इतने सेक्शन हैं। लेकिन वो था प्रेजेंटिव टैक्स इन केस ऑफ ओशन गोइंग शिप। जो ओशन गोइंग शिप है, वन ओशन टू द अनदर ओशन, उनके लिए एक प्रेजेंटिव टैक्स बनाया था कि 1000 टन की अगर कैपेसिटी है तो 70 रुपये पर 100 टन 7000 रुपये इनकम दिखाओ। 1000 टन तो कुछ नहीं होता, 1000 से 10,000 के बीच में है तो वो 1000 पे तो 70 रुपये 700 हो गया, प्लस आप उसके ऊपर 53 ले लीजिए, 70 से 53। अगर अगले 10 से 25 है तो 42 ले लीजिए, और बाकी पे 29 लीजिए, अबाउट 25 प्रेजेंटिव इनकम। अब इनलैंड वेसल्स जो इंडिया के अंदर चलते हैं, जो मोदी जी ने कहा है कि चला करेंगे अंदर एक एक जगह डेस्टिनेशन के लिए घुमाने, उनके लिए भी ये
बेनिफिट प्रेजेंटिव टैक्स का दे दिया। तो इसलिए पूरे सेक्शन में जहाँ जहाँ ओशन गोइंग शिप लिखा था उसके लिख दिया एंड इनलैंड वेसल, इसलिए 12-13 सेक्शन है जहाँ पर यह अमेंडमेंट आई है, अदरवाइज कुछ नहीं है। वो अमेंडमेंट 12-13 सेक्शन की सिर्फ ऐड किया गया। व्हाट इज एडेड? इनलैंड वेसल अलॉन्ग विद ओशन गोइंग शिप टनेज टैक्स प्रेजेंटिव इनकम, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंटिव इनकम टनेज टैक्स। आगे चलते हैं सर, अपडेटेड रिटर्न हम लोगों ने रिकमेंड की थी कि सर कई बार गलती हो जाती है, इंसान से इनकम स्केप हो गई, नहीं डालना भूल गया, कुछ मिस्टेक हो गई। अब 31 दिसंबर के बाद तो यू कैन नॉट रिवाइज योर रिटर्न, तो हाउ विल वी कम टू नो? सो प्लीज ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न। हमने अपडेटेड नहीं कहा था, मॉडिफाइड रिटर्न। उन्होंने अपडेटेड नाम रख दिया, बट वी गेव द नेम एज मॉडिफाइड रिटर्न विच यू कैन फाइल आफ्टर द पीरियड ऑफ रिवीजन, रिवाइज पीरियड का जो होता है 9 महीने का खत्म हो जाए। हमने रिकमेंड किया था फॉर 1 ईयर 10%, फॉर 2 ईयर्स टैक्स शुड बी, एक्स्ट्रा टैक्स शुड बी 15%, लेकिन उन्होंने माना नहीं था। उन्होंने 25% ऑफ द एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट करा था फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर, इफ इट इज फॉर सेकेंड ईयर, 50% ऑफ एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट। सर 90 लाख रिटर्न रिवाइज हुई है, 90 लाख अपडेटेड रिटर्न फाइल हुई है 2 साल में। 90 लाख स्मॉल फिगर नहीं है सर, 90 लाख। बड़ों की इतनी रिटर्न नहीं है, अपडेटेड हुई है। इसलिए इनकरेज्ड हुए कि चलो इसका पीरियड 4 ईयर कर दिया जाए, यू कैन रिवाइज फॉर 4 ईयर। वैसे तो 3 साल ही रिवीजन है। अब आप देखो इनकम स्केपिंग असेसमेंट में तो कितना पीरियड होता है, 3 साल। अनदर 2 ईयर ओनली इट इज मोर देन 50 लाख, एम आई राइट? लेकिन वहाँ टैक्स ज़्यादा है। इन्होंने क्या किया, 3rd ईयर भी कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ 50 यू हैव टू पे 60% ऑफ द एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट। 60% टैक्स नहीं है, 60% ऑफ द टैक्स। सो इसका अगर टैक्स 30% है तो 50% 15 बनता है, अगर 25 है तो 7.5 बनता है, और 60 18 बनेगा। 30 + 18 48, प्लस इंटरेस्ट जो बनता है उसका भी 60%। इतना टैक्स दे दो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इनकम को बढ़ा दो, हम आपको अलाउ कर देंगे। ये किया। और चौथे साल अगर करना है तो 148A का नोटिस नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 साल के बाद तो वो हो गया ना। 148 का नोटिस 3 साल के बाद आएगा तो 50 लाख से ऊपर वाले का ही होगा ना। उनका अगर है तो अगर नोटिस नहीं आया तो आप चौथे साल भी जा सकते हैं। 70% of the aggregate amount, tax and interest. So 60/70 has been put under 140B rate, and 139(8)A has said you can revise for a period of 4 years from the end of the relevant assessment. 4 साल तक ही आपको समझ में नहीं आया, ये परमानेंट VDS आ गया इनडायरेक्टली, ये परमानेंट VDS आ गया इनडायरेक्टली। डाल दो और निकल जाओ। वो वाला मत डालना कि वो अपने ओल्ड रिजीम में कहा था जिसने टैक्स नहीं दिया ATC डाल दो। समझ में आ रहा है ना? ATC डाल दो, ATD डाल दो, तभी तो बंद हुआ। डाल दो का मतलब जमा कराए नहीं, खर्चा ले लो। अब ये है आपकी इनकम स्केप हुई है कुछ, तो अगर टेक्निकल मिस्टेक है तो 10,000 रुपये इनकम बढ़ा दो तो रिवाइज कर दो, टेक्निकल मिस्टेक में नहीं है। अगर आपकी इनकम जेन्युइनली भी अगर है तो दे दो ना टैक्स, ये ज़्यादा बेटर है देने में एज कम्पेयर टू 148 नोटिस एंड देन 147 एंड देन टैक्स में भी 78% अंडर 115 BBE। तो इसलिए अब 4 years तक यू कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न 25, 50, 60, 70, but 70 only when no notice has been issued under 148A. Clear है sir? This is another very good which has come. कि लोगों को पहला बोला उन्होंने ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनी लेटर, यही बोला ना, ट्रस्ट फर्स्ट, हम ट्रस्ट करेंगे। अब ट्रस्ट करेंगे तो आपसे गलती होगी तो ठीक कर लो, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनी लेटर। तो यह अगर आपका मोटो है तो ऑब्वियसली दे वांट यू टू फॉलो, और चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको सब कुछ आपके बारे में पता है, चिंता ना करना। अब उनको एक एक चीज़ पता आपके बारे में। एक तो बेड़ा करके GST वालों ने कर दिया है, सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से भी आ जाती है।
AIS तो देख ही लिया आपने, देखा है ना AIS, उसकी वजह से अब थ्रेशोल्ड लिमिट भी बढ़ा दी गई फॉर ऑल TDS आइटम्स, क्योंकि दे हैव इंफॉर्मेशन। 1 रुपए का इंटरेस्ट आता है उनके पास फिगर है, 1 रुपए का डिविडेंड आता है उनके पास फिगर है कि नहीं है ये इसमें। तो TDS और नो TDS इंफॉर्मेशन इज विद देम, TDS और नो TDS इंफॉर्मेशन विद देम। तभी क्या किया है, आज तक 193 इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज पे कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं थी, एक्सेप्ट एक आइटम की थी, डिबेंचर इशूड बाय ए कंपनी विद पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, जहां 5000 की लिमिट थी। अब फॉर ऑल सिक्योरिटीज थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000, 10,000 से नीचे होगा TDS काटने की जरूरत। अरे काटने की जरूरत क्या है, वहां तो इंफॉर्मेशन तो आई जानी है। 193 डिविडेंड अभी तक इंडिविजुअल को जो दिया जाता था अप टू 5,000, देयर वाज नो नीड ऑफ डिडक्टिंग द टैक्स, लेकिन 20 रुपए भी वहां आ जाते हैं TDS और नो TDS, तो वो अब 5,000 हैज बीन रेज्ड टू 10,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल, बाकी को तो है ही नहीं। 194A जो सीनियर सिटीजन है, इवन देयर FDR इंटरेस्ट अगर 1 लाख से ऊपर नहीं है, नो TDS से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन उनको बेचारों को रन पिलर टू पोस्ट अपना रिफंड के लिए देखना पड़ता था, TDS ये करना। अब कोई 15G 15H तो है ही है, लेकिन 1 लाख से नीचे होगा तो कोई 15G 15H देना ही नहीं है, वो तो है ही नहीं TDS कटना। TDS तब कटता था जब 50 से ज़्यादा था, बाकियों का 40 से ज़्यादा था, लेकिन अब सीनियर सिटीजन 1 लाख, अदर 40 रेज टू 50, एनी अदर 5 रेज टू 10, एनी अदर इंटरेस्ट 5 रेज टू 10। क्लियर हुआ सर? ये आपका आगे ये था 194A। 194B लॉटरी, अरे पिछली बार लॉटरी विनिंग ऑफ लॉटरी क्रॉस रोड का डाल दिया, एग्रीगेट 10,000, ये नहीं है। अब एग्रीगेट का कौन हिसाब रखेगा कि वो लॉटरी एक बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी जीता तो कोई नहीं है, लेकिन जीत तो जाते हैं, मैं समझ। तो उन्होंने अब क्या कर दिया, 10,000 पर ट्रांजेक्शन TDS, अगर उससे ज़्यादा है तो TDS कटेगा पर ट्रांजेक्शन, नॉट एग्रीगेट। सिमिलरली फॉर हॉर्स रेस 10,000 पर ट्रांजेक्शन एंड नॉट एग्रीगेट। ये 94B 94BB में चेंज कर दिया है। 194D इंश्योरेंस कमीशन जो 15,000 की लिमिट थी 20 कर दी गई है। 194 और व्हाट यू कॉल G जो लॉटरी की कमीशन थी 15 की 20 कर दी गई है। 194H कमीशन जो 15 की थी वो 20 कर दी गई है। 194J जो 30 था वो 50 कर दिया, एक छोड़ दिया मैंने जान के, वो 30 का 50 कर दिया। 194K जो यूनिट से आता था 5,000 वो 10,000 कर दिया है। LA जो एक्विजिशन था 2.5 लाख का 5 लाख कर दिया है। एक 194I जो 240 था क्या कर दिया, बिल्कुल गलत 6 नहीं है, 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये बिल्कुल गलत है। 6 लाख कहेंगे तो 50,000 रुपया पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है। आपने जनवरी में किराए पे दिया 80,000 रुपये महीना 3 महीने का, पहले तो TDS नहीं कटता था, अब तो 50 से ऊपर है TDS कटेगा। 6 लाख नहीं है, यू हैव नॉट नोटिस, 6 लाख पूरे साल का है। अगर 3 महीने किराए पे दिया जो करा करते थे, वो जो किराए पे दिया उसमें TDS कटेगा अगर 50,000 पर मंथ से ऊपर है। सो आपने जनवरी में दिया 2,40,000 3 महीने का बनता है, पहले नहीं कटता था, अब कटेगा 50,000 से ऊपर है। सो TDS टू बी डिडक्टेड। ये 240 रेज टू 6 लाख, आई एम रियली सरप्राइज्ड। लेकिन वो जो है ना, उस वहाँ पर जब रेंट दिया जाता है तो वहाँ पैन नंबर भी डलता है, उसका लैंडलॉर्ड का, वो सब लिंकिंग है, वो कर लेंगे। और जब आप देते हैं रिटर्न में तो उसमें भी डालते हैं, तो TDS को 50,000 रुपये महीने से ऊपर तब TDS कटेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए टाइम कंप्लायंस कम हो जाएगी ना, जिसमें ज़रूरत नहीं है वाई शुड यू डू इट अगेन एंड अगेन कम। और AIS तो है ही है, वहाँ से इंफॉर्मेशन तो आपको आई जाएगी। तो और भी था 206C1G, सॉरी 1, वो जो TCS और टिम्बर होता था अदर देन फॉरेस्ट लीज, और जो TCS और टिम्बर अदर देन वो होता था, अदर देन वो 2.5% था, 2% कर दिया। लेकिन वो नहीं है, ट्रेडर कहता था हमारे पास आइटम है जो फॉरेन प्रोड्यूस है, सॉरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टिम्बर नहीं बात कर रहा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, अब ट्रेडिंग करते हैं,
उसमें भी वो TCS का प्रॉब्लम आती थी। क्लैरिफाई कर दिया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर ए फॉरेस्ट लीज का होगा तो TCS होगा, अगर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर ए फॉरेस्ट लीज नहीं होगा तो फिर TCS नहीं, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन कर दिया। सो दिस इज 206C1। 206C1H सबसे बढ़िया काम ये किया है। बड़ी बड़ी कंपनियां कहती थी हम तो TCS काटेंगे, हाँ TCS कलेक्ट करेंगे ऑन ए सेल मेड टू यू फॉर मोर देन 50 लाख। 94Q में लिखा है, 194Q में बायर इज सपोज टू डिडक्ट द TDS एट द रेट ऑफ 0.1% इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ परचेजेस इज मोर देन 50। कौन करे? बायर के सेलर। बड़ी कंपनी नहीं सुनती थी, अगर हमें नहीं जानते। हम भी कई बार काटे तो मरे, वो ना काटे तो मरे, नहीं तो वापस ले रिफंड, इधर ये कट गया उधर वो कट गया। व्हाट इज दिस? क्लियर कर दिया। ओनली 194Q, 206C1H है ही नहीं, ओनली 194Q। सबके अपने सॉफ्टवेयर चेंज करने पड़ेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिनके सॉफ्टवेयर सीधा ही 0.1% ऐड करके बिल भेज देते। ओनली 194Q। ये अच्छा किया है। और जो आपको पता था LRS जो 7 लाख की लिमिट थी, दैट हैज बीन रेज्ड टू 10 लाख। फायदा क्या किया? एजुकेशन लोन लिया, बाहर भेज रहे हैं बच्चों को, फिर भी TCS कलेक्ट करो, वो हटा दिया। इफ टेकन लोन फ्रॉम स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन जो 0.5 था वो नहीं। सबसे बड़ी बात बताऊं, जो किसी ने नोट की या नहीं कही है, पहले जितने भी TDS के प्रोविज़न आते थे वो अब जुलाई से लगते थे, और जब जुलाई में बिल आता था तो अक्टूबर से लगते थे। जी नहीं, 1 अप्रैल से हैं सारे प्रोविज़न, ओनली फ्रॉम 1 अप्रैल 25। कोई डेट नहीं है। जब बिल पास हो गया 31 मार्च में, सब एक्ट बन गया, तो वाई जो ये ट्रेडिशन चला आ रहा था, क्योंकि पहले बिल मई में पास होता था, लेकिन वो लकीर के फकीर हैं, हर बार जुलाई, और जो जुलाई में आता था हर बार अक्टूबर। जब मार्च में पास हो गया तो 1 मार्च को, आपको 1 अप्रैल को पता है क्या है तो वो करिए ना। तो ऑल TDS प्रोविजन एप्लीकेबल, वॉट एवर अमेंडमेंट एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। बिल्कुल मत सोचना 2025 से ही लगेगा सारे TDS के प्रोविजन। सो ये भी क्लियर कर दिया। सो यू हैव नॉट टू बॉदर अबाउट इट। पढ़िए, और वो जो स्लैब है वो आपको करके पूरा चार्ट बना के दे दिया है, वो आप कर लीजिए। ये सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है। दे आर सेइंग यू कंप्लायंस वर्क कम होगा। ये जो 25% कम रेट बढ़ा दिया, उतना कंप्लायंस तो कम होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट वो 30 का 50 करा, जो एक बिल होता था कभी 50 का हो जाता था, अब दोबारा नहीं हुआ TDS, फिर भी अब TDS 50 से ऊपर होगा। 50 है तो नहीं होगा, 50 होगा, ऊपर होगा तो फिर तो होगा ही होगा एग्रीगेट में। ये भी खत्म कर दिया सर। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो खास पॉइंट नहीं है। 270A था जो आपको पेनल्टी लगी, वो जो आपकी वो पेनल्टी लगा दी, वो करना है। 270AA में होता था इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी, लेकिन उसमें लिखा था कि अगर आप पेनल्टी से इम्यूनिटी लेना है तो टैक्स जमा करा दो, इंटरेस्ट जमा करा दो, लिख दो, एप्लीकेशन दे दो कि मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन एप्लीकेशन देनी थी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ व्हेन यू रिसीव्ड इट। वो 1 मंथ एंड मी रेज टू 3 मंथ्स। पीरियड थोड़ा आपको सोचने के लिए दे दिया। 3 महीने तक का एप्लीकेशन दे दीजिए, हम आपका 271AA एक्सेप्ट कर लेंगे। सर पेनल्टी लगाते थे 271C, 271CA, 271D, 271DA, 271DB, 271DE। बताता हूँ क्या है। ये सारा जॉइंट कमिश्नर लगाता था। आगे से पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर लगाएगा। 271C होता था नॉन डिडक्शन ऑफ TDS। 271CA होता था नॉन कलेक्शन ऑफ TCS। 271D सबको पता है 269SS का होता था। 270 उसका वो जो 269ST का वो DA होता था, और फिर E होता था रीपेमेंट 269E का। उन सब में पेनल्टी अब कौन लगाएगा? AO लगाएगा, जॉइंट कमिश्नर नहीं लगाएगा। अब AO लगाएगा, नीचे ले आए, कोई टाइम नहीं है उनके पास, AO ही काम शुरू कर देगा। उसके बाद कई सेक्शन देखिए, 153, 153B, 144BA, जिसमें लिखा था आपकी प्रोसीडिंग जो स्टे बाय कोर्ट है, अगर कोर्ट ने कोई इंजक्शन दे दिया, स्टे दे दिया, तो हम उस पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीटिंग द असेसमेंट। वो पीरियड बताया नहीं था, स्टे था।
Now, everywhere where the word used stayed or injunction कह दिया, this will start from the date when the stay was granted or injunction was given and will end on the date when a certified copy of the vacation of the stay is received from the court. तो उतना पीरियड एक्सक्लूड करेंगे फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट. पहले पीरियड डिफाइंड नहीं, क्लैरिफिकेशन है, छोटी छोटी माइनर चेंजेस हैं, कुछ नहीं है. 4-5 जगह में ये डाल दिया और कुछ नहीं किया है. सबसे बड़ा जो किया पिछली बार किया था 276B कि प्रोसिक्यूशन जो होता है टीडीएस ना जमा कराने का. क्या कह दिया था? इफ यू आर एबल टू डिपॉजिट द मनी बिफोर द डेट व्हेन द क्वार्टरली रिटर्न इज सबमिटेड, उस तारीख तक होगा तो प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करेंगे फॉर टीडीएस. टीसीएस का नहीं किया था, इस बार वो भी कर दिया 276BB में कि टीसीएस भी अगर आप ठीक टाइम पे जमा नहीं करा सके, नो प्रॉब्लम, इंटरेस्ट दोगे, लेकिन प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं होगा. इफ यू आर एबल टू डिपॉजिट द मनी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द क्वार्टरली रिटर्न ऑफ टीसीएस, आप डाल दीजिए. हम कुछ नहीं करेंगे. हम आपको कह रहे हैं, हम आपको प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं करेंगे, इंटरेस्ट तो ले लेंगे. इंटरेस्ट को तो मना कर ही नहीं, इंटरेस्ट देंगे. वर्चुअल डिजिटल एसेट के पीछे पड़ गए. अनडिस्क्लोज इनकम में भी डाल दिया और रिपोर्टिंग भी उसकी हुआ करेगी. वैसे तो किसी ने आज तक कमाया नहीं है, लेकिन आप करना चाहते तो करते रहो, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसमें. सो वही मेरा पॉइंट है. एक आध कोई पॉइंट रह गया और सेक्शन कभी कभी बातों बातों में निकल जाता है, तो आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. वैसे मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आप पूछिए जो पूछना चाहते हैं. हाँ जी बोलिए. ये जरा माइक वगैरह उसके पास चला जाए तो अच्छा है. बोलिए बोलिए. एक मिनट. अरे वो कुछ नहीं है, नॉन फाइलर वाला की जो डबल था, डबल द रेट और दिस और टू, वो उसको सेक्शन को हटा दिया है, लेकिन पैन बेस तो रहा है. पैन बेस अगर पैन नंबर नहीं दोगे तो 20% तो है ही है, और जहाँ 0.1 है 5% तो है ही है, या 1% वो रहा. सिर्फ वो नॉन डबल था, वो नॉन फाइलर का हटा दिया, टीडीएस और टीसीएस वाला. नॉन फाइलर के लिए वो पेनल्टी सेपरेट नहीं है ना. ये दैट्स. और पूछिए जो पूछना है. एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी. हाँ चैरिटेबल में, हाँ बोलिए. चैरिटेबल ट्रस्ट में जो 5 करोड़ का लिमिट है वो कौन से ईयर में गिनना है? सर 1 अप्रैल से आ जाना है. आप पिछले 2 साल का देख लेना रिसीट्स. पिछले 2 साल का क्यूमुलेटिव और Please be seated for 10 minutes. पर ईयर पर ईयर मींस विच ईयर, फर्स्ट और सेकंड? We have to deliver vote of thanks also for the sir. Please be seated. Don't leave एक में the 5 hall. से ज्यादा तो नहीं होगा. और एनीवन? Anyone, both should be less than 5 years. Anyone, both should be less than 5 years. 5 crores. ये प्लानिंग का स्कोप नहीं है. वो ये कोई ऐसा कर लेना, 5 से नीचे है तो ले लो, नहीं तो 5 साल ले लो. हाँ जी. सर नहीं है ना, अब पुराना अब 10 कर दिया है. अब रिपोर्टिंग नहीं होगा ना. 1 से कम है या 10 से कम है तो नो रिपोर्टिंग द रिटर्न. रिटर्न में कुछ नहीं डालना, रिपोर्टिंग नहीं करना, रिलेटिव का नाम नहीं देना. वो प्रैक्टिकल डिफिकल्ट था सर, उसको ठीक किया है. हाँ वो खत्म हो. हाँ जी. ओहो सॉरी, इंटरनेशनल टैक्सेशन ही भूल गया. 92CA देखिए, योर केस हैज बीन रेफर्ड टू TPO फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस. वो करता है. अब आपको पता है कि आपकी कोई चेंज ऑफ कंडीशंस नहीं है और वही ट्रांजैक्शन आगे से भी हो रही है, तो बार बार वो TPO को भेजे ये तो परेशानी होगी. यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू TPO. यू मीन्स assessee कैन मेक एन एप्लीकेशन टू TPO that look here कि I exercise an option that there is going to be no change, so kindly allow me not to go for TPO. उसको होगा ये वाला हमारा एक्सेप्ट पहले भी कर लिया जाए. ये का एक्सरसाइज कौन करेगा? असेसी करेगा, बट कंडीशन वो इम्पोज करेगा एंड यू विल हैव, वो वेरीफाई भी करेगा देयर हैज़ बीन नो चेंज. तो वो लिख के दे देगा ये को, नो नीड ऑफ TPO एंड यू कैन कैरी ऑन. अगर आपका पुराना कर चुका है तो 155 सबसेक्शन 21 में वो रेक्टिफिकेशन भी कर देगा. So the ease of doing business. Every time you don't have to run to TPO to get the arm length price determined.
You know that there are circumstances have not changed. You know that the transaction nature has not changed. You can always exercise option आपकी है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सर ये सेटिस्फाई कर सकता है कि कंडीशन चेंज नहीं होगी, वो इम्पोज कर देगा कंडीशन चेंज नहीं, तो वो 3 ईयर के लिए वैलिड हो गया इंस्टेड ऑफ 1 ईयर. दैट इज ऑल विच इज 92CA. ये सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का जो चेंज है कुछ भी नहीं. देखिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है कि जहाँ अगर हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर इंडिया में अगर माल बिकता है तो टैक्स इंडिया में मिलना चाहिए, टैक्स इंडिया में मिलना चाहिए. वॉट एवर मटीरियल इज सोल्ड इन इंडिया तो टैक्स शुड बी, क्योंकि इनकम यहाँ से हुई हुई है. लेकिन हमें करा हुआ है सेक्शन 9(1) में कि आपने कोई माल इंपोर्ट किया है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, सिर्फ परचेजेस किए फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं करते थे, बिजनेस करेक्शन नहीं माना जाता. जब 9(1) में प्रोवाइजो आ चुका है तो ये इसमें भी वो डाला हुआ था, तो इसलिए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस के नीचे प्रोवाइजो डाल दिया है कि अगर सिर्फ परचेज के लिए किया है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, देयर इज नो सेल इन इंडिया, तो इन दैट केस देयर इज नो नीड, दे विल नॉट कॉल इट एज ए बिजनेस करेक्शन. भाई इतना करिए. वैसे तो नॉर्मल बिजनेस करेक्शन में 5 और 7 लगता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत तेज है ना. हमारे यहाँ तो डिजिटलाइजेशन को भी कर दिया कि वो लेवी लगा के, इक्वलाइजेशन लेवी, यहाँ तो इक्वलाइज लेवल भी लगा दिया है, क्रिटिकल इकोनॉमिक प्रेजेंस भी लगा दिया था. अब लेवी में थोड़ा चेंज किया था पिछली बार, क्योंकि इंडिया इज वेल अहेड. वो किसी की बात नहीं सुनता है कि मेरा पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए. बात ठीक है, लेकिन इफ यू हैव परचेज हियर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे तो टैक्स लगता नहीं है ना, तो वाई आर यू पुटिंग इट प्रेशर ऑन देम, एंड इट इज ऑलरेडी कवर्ड अंडर 9(1), देन वाई यू हैव पुट इट अंडर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस. दैट्स व्हाई एक प्रोवाइजो डाल के क्लैरिफाई किए. देयर इज नो अदर चेंज. ये जो SEP है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है. चलिए ये भी उसका कर दिया जो आपको बताया 92CA और 9 राइट. हाँ BA भरना ही नहीं था. जब बिजनेस नहीं है तो कुछ नहीं भरना होता, रिटर्न में ही कर देते हैं. वो तो रिटर्न में ही करते हैं ऑप्ट. अरे ऑप्ट तो करना ही नहीं, अब तो ओल्ड के लिए ऑप्ट करना है, नए के लिए कौन ऑप्ट करेगा भाई. अरे वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिंग फॉर इट. इफ यू हैव टू ऑप्ट फॉर ओल्ड देन ओनली यू हैव टू फाइल एफ. और इंडिविजुअल को अगर उसकी बिजनेस इनकम नहीं है तो कुछ नहीं करना है, वो रिटर्न में ही ठीक कर देते हैं. हालांकि मुझे रिटर्न भरनी नहीं आती, लेकिन पता है. कौन भरेगा, मुझे आता नहीं कंप्यूटर, तो क्या करूं, मेरे रिटर्न भी कोई और भरता है. हाँ जी Sir, can NR can get एक the मिनट index? लेट मी कंप्लीट दिस. हाँ Sir? 1 मिनट कोई भी हो. हाँ बिजनेस था आपका, नहीं था, फिर क्या बात है. रिटर्न में ठीक कर दो, उसकी वैल्यू ही नहीं है 10 आएगी, कोई वैल्यू नहीं है, रिटर्न में कर दो. और करना ही कुछ नहीं, रिजीम ही नहीं है. जब आपने डाला ही नहीं तो रिजीम. पुराना कुछ पूछ रहे हैं, जब उल्टा था, जब रिजीम के लिए अप्लाई करना होता था, अब तो नए में तो रिजीम के लिए अप्लाई करना ही बाय डिफॉल्ट, यू आर अंडर न्यू रिजीम. सब पुराना केस है आपका, नया नहीं है, पुराना केस है. और पुराने केस में अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं थी तो अगर रिटर्न में आपने ऑप्ट नहीं न्यू का तो चल जाएगा ओल्ड में. सर फैक्ट का केस है, आराम से बाहर कर लेगा, टेक्निकल इशू है इसमें. चल मैं बता दूंगा आपको बात. एनी अदर Sir, whether NRI can get the index as a benefit? दोबारा, मुझे कहीं नहीं पता कहाँ से बोल रहे हैं. हाँ जी. हाँ Sir, whether NRI can get the index as a benefit on sale of the immobile property? अब ये इन्होंने वो जो सेकंड प्रोवाइजो पूछा है जो 112 में डाला गया 1A में कि दैट यू हैव एन ऑल्टरनेटिव दैट यू कैन गो फॉर इंडेक्सेशन, और तो टैक्स अगर ज़्यादा बनता है तो इग्नोर करेंगे. वहाँ लिखा इन केस ऑफ रेजिडेंट. अब ये थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़ी लिखी थी, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करते हैं उनको कहते हैं पढ़े लिखे हैं. वो एक डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है. डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. एक एग्रीमेंट होता है ट्रीटी में, डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज, कि आप बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स के लिए कर सकते हैं. वो टैक्स के लिए वो प्रोविजन डाला है 112 में, टैक्स के लिए डाला है. अभी भी कंपनी जो फॉरेन कंपनी 35% है, वो कोई 30% थोड़ी है या 22% थोड़ी है. सो माई पॉइंट इज, सिंस इट इज अ मैटर ऑफ टैक्स, इंडेक्सेशन विल नॉट बी अलाउड टू यू.
You will not get the benefit of indexation which has been given to resident, individual or HUF. बाकियों को तो मिला ही नहीं है. And that only on case of land and building. तो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज यहाँ पर नहीं फिट होता है. चलिए, हाँ 194 टी. मैं गया था, सुन तो लीजिए पहले, जब वो बजट आया था उन्होंने कहा था हम इसको ठीक कर देंगे, अगले साल से तो लगना है. किया ही कुछ नहीं, या तो भूल गए. थोड़े दिन बाद जाऊंगा और कोशिश करूंगा क्लैरिफिकेशन है. जाएगा नहीं, 20,000 रुपये. अरे बाकी का मैं 2-4-6 लाख कर दिया, 40. पहला पॉइंट. दूसरा वो हाउ टू डिटरमिन द सैलरी, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग द सैलरी ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. सो वेट एंड वॉच. वी विल गो, रन फॉर इट, मे गो फॉर गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स व्हेन द बिल इज फाइनली. मैं अश्योरेंस नहीं दे रहा क्योंकि मैडम के सामने अश्योरेंस नहीं होती. कोशिश कर सकते हैं. विल ट्राई टू डू इट. विल ट्राई टू डू इट. 194 टी में कोई चेंज नहीं आया. विल ट्राई टू डू इट. हाँ, 269 एसएस अलग चीज है, 48(3) अलग चीज है. 269 एसएस तो लोन और एडवांस का है और वो तो 48(3) तो एक्सपेंडिचर का है. दोनों को कैसे लिंक कर रहे हैं? पर हाँ, कैश ट्रांजेक्शन. हाँ नहीं, सिर्फ अकाउंट पे ही नहीं है, एनी अदर मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑल्सो. अकाउंट पे ही चेक से करनी है. सर देखिए, दीज आर दी केसमेंट विच आर बेस्ड ऑन दी जजमेंट्स. नोएडा अथॉरिटी की जजमेंट है, पेमेंट डायरेक्टली मेरे बिहाफ पे उनने कर दी. दैट टाइप ऑफ जजमेंट्स यार, दे नथिंग इन द लॉ. वो जजमेंट है, जजमेंट तो उठा के हाई कोर्ट ने भी दे दी. पंजाब सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने. किस बारे में? कि वो जो आपको मिलना चाहिए बेनिफिट ऑफ 80 से ऐसे है. बिल्कुल गलत है, वो होना नहीं चाहिए. मैं आपको बता रहा हूँ, गलत है. ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर 1 साल का आगे तो क्लियर कर ही दिया. आगे तो क्लियर कर ही दिया सर. ये जजमेंट पे बेस है. अदरवाइज यू आर मेकिंग ए पेमेंट ऑन देयर बिहाफ. रिटर्न जो लिखा हुआ है अकाउंट पे, चेक इन द नेम ऑफ द पे. याद कीजिए 270 वो लिखा है इन द नेम ऑफ द पे. तो आपने नेम ऑफ द पे थोड़ी दिया है. जजमेंट में कुछ भी हो जाए. और ITAT की जजमेंट तो मैं मानता ही नहीं हूं. चलिए सर आगे. हाँ 80G तो वैसे ही नहीं है कुछ, क्यों ले रहे हैं? वो 80G तो सिर्फ सैलरी वाले चलाते थे. खत्म है सर, कोई दानी नहीं है यहाँ पर. हमारे CA बेनिवल फंड को पैसे नहीं दे रहा, मांग मांग के थक गए. कह रहे हैं दे देंगे. लेट अस नॉट टॉक अबाउट 80G. सैलरी वालों का बोनांजा था. अब तो जब नई रिजीम आ गई तो 80G क्या, पॉलिटिकल पार्टीज भी खत्म है, उनको भी पैसा नहीं आएगा. कहाँ से आएगा? वो खुद ही कह रहे नंबर 2 का दो. अब कोई नंबर 1 का तो कोई देगा ही नहीं ना. कंपनी तो पहले ही न्यू रिजीम में है. कौन सी कंपनी ओल्ड रिजीम में है? सिर्फ मैट वाली है जिसको पहले ही पैसा नहीं है, वो क्या डोनेशन देगा? तो इसलिए 80G इज प्रैक्टिकली फिनिश्ड. मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ, छोड़ दो 80G. उसके लालच में बहुत दिक्कत आती है. 80G का कोई वैल्यू नहीं है. जिसने देना वो वैसे भी दे देगा. ये तो हम ही लोग, मैंने बताया ना, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर 20-40 करोड़ रुपये आता था. 80G रखा था. मैं कहा 80G में कितना खाता? 10 लाख. मैं 10 लाख के लिए आप क्या मुसीबत ले रखे हैं? आप तो रिलीजियस ट्रस्ट हैं. क्या पागलपंती करी चैरिटेबल लेकर? कल आपको 80G मिला हुआ है, कल रगड़े में आ जाएंगे. सरेंडर करा दी. कोई मतलब नहीं है 80G. जिसने 10 लाख नहीं देना मत दे. 20 करोड़ के लिए मैं 10 लाख के लिए थोड़ी रखूँगा. सो देयरफॉर 80G इज प्रैक्टिकली गया. अब आप कहेंगे CSR का क्या होगा? जब 80G खत्म हो जाएगा तो CSR वाले कुछ और ढूंढेंगे. उन्हें इनकम टैक्स पे रिलाई किया है ना. कंपनी लॉ वाले रिलाई कर रहे हैं भी, कमिश्नर ने सब कुछ देखा हुआ है तो ये जेन्युइन है. तो वहाँ अगर खत्म हो जाएगा तो दे विल फाइंड आउट द. सो देयरफॉर 80G फॉर माई साइड प्रैक्टिकली इज ओवर. चलिए सर, और सर पूछना सर. हाँ लास्ट क्वेश्चन. कहाँ? हाँ अभी कैपिटल गेन में सर, इफ प्रॉपर्टी इज परचेज बिफोर 31st of July 2024. 23rd of July. हाँ,
31st नहीं 23rd of July 2024. So we have option to get indexation benefit. No, we don't have an option. We have to pay as per new regime, but we can calculate as per the old regime. Sir, also. so in while calculating, we can get benefit of section 54. Yes. No, 54 भी old regime में लोगे. Okay. Yes, वो किस दिन फिर बात करेंगे. ये कैसे हो सकता है कि इंडेक्सेशन आपको अलाउ कर रहे हैं 54 नहीं अलाउ करेंगे. इनका पॉइंट ये है, मैंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, 2 करोड़ का था कॉस्ट, 3 करोड़ आ गया. मुझे 54 लेना है, क्या मैं 3 करोड़ इन्वेस्ट करूं? मैं इंडेक्सेशन करके तो मेरा 2 करोड़ आ रहा है. मुझसे पूछिए तो 2 करोड़ करना पड़ेगा. Okay. So 2 करोड़ without indexation में जाके करना है. नहीं, Indexation. Okay, उल्टा. Okay, thank you. वो कहेगा टैक्स यहां बन जाएगा 1 करोड़ रुपए पे, उधर बढ़ेगा 0, तो टैक्स विल बी जीरो. डोंट वरी, वो है 54, 54B, 54F, 54EC, सब में आप इंडेक्सेशन करके वो बेनिफिट ले सकते हैं. हैं जी? देखिए, हायर रेट के लिए पैन बेस्ड हो गया ना, वो नॉन फाइलर खत्म हो गया, बस. और क्या हुआ है? नॉन फाइलर तो जबरदस्ती डाल दिया था कि इनको एनकरेज करने के लिए. अब तो ये वो पैन नहीं होगा तो 20% है या 5% है, जो भी हायर है. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग. थैंक यू. The budget as usual every year. Definitely, sir, your instruction, your guidance, your suggestion that we'll start reading with these sections again and the Income Tax Act as well, and we'll try to revive our practices. I thank you so much, Girish Ahuja sir, for being here and for all the members present here. Thank you so much for attending, all the members and the